सभी को नमस्कार। मैं बलबीर कश्यप, बीओकॉम बीआरसी राजौंद कैथल हरियाणा भारत में एक नई जानकारी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए जानते हैं क्या है ये जानकारी। आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं IISF 2023 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 का आयोजन होने जा रहा है। यह पत्र 20 नवंबर 2023 को आदरणीय श्री महेश पटेल जी, साइंटिस्ट GNIF, कोऑर्डिनेटर एजुकेशन फॉर एस्पायरिंग इंडिया, नेशनल साइंस टीचर वर्कशॉप के माध्यम से श्री महावीर प्रसाद जी, डायरेक्टर SCRT हरियाणा गुरुग्राम को प्रेषित किया गया था। विषय है इसका 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यानी IISF 2023 ड्यूरिंग 17 to 20 जनवरी 2024 रिगार्डिंग। तो डियर श्री महावीर प्रसाद जी, ग्रीटिंग फ्रॉम नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया। As you are aware that the India International Science Festival IISF is an initiative of the Ministry of Science and Technology and Ministry of Earth Sciences, Government of India, in association with Vijnana Bharati, National Innovation Foundation India, NIF India, has been entrusted with the execution and successful implementation of the 9th edition of IISF 2023, scheduled to be held at DPI THISTI RCB campus, Faridabad, Haryana, during January 17 to 20, 2024. IISF 2023, resonating with its theme Science and Technology, Public Outreach in Amritkal, is poised to continue its illustration journey, providing an accelerating exploration of science and technology. As a part of the program, Education for Aspiring India National Science Teachers Workshop will be organized from 17 to 20 January 2024. Its aim to gather innovative, dedicated educators from across the country to promote experiential learning, emphasizes key concepts and encourage problem-solving skills. Participants will share teaching methodologies and innovation in activity-based learning. Panel discussion will cover various aspects of the science education, including effective tools for comprehensive learning. It's also aimed to leverage science education as a means for nation building through science, technology, and innovation, culminating in a report based on discussion and dissertation. In this context, innovative science teachers, secondary education across the country can submit their application through IISF web portal https://www.scientiafest.org/ by December 3, 2023, यानी लास्ट डेट इसकी 3 दिसंबर 2023 रखी गई है। The nomination procedure and eligibility criteria are given below. I would like to request you please aspire all the schools under your purview about the program so that innovative science teachers can submit their applications well before the given deadline. I look forward to your kind cooperation as ever to make this program grand success. With warm regard, respected Mahesh Patel जी। क्या है रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर? Click on https://www.scienceindiafest.org/register/for general registration.
यानी सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाके अपना एक रजिस्ट्रेशन करना है। वंस जर्नल रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, लॉग इन into the portal and click on the education for aspiring India National Science Teacher Workshop section। फिर आपको जनरल रजिस्ट्रेशन के बाद दोबारा पोर्टल पर लॉगिन करके अपना आईडी और पासवर्ड जब बनाएंगे आप, उसके बाद आपको ये इस सेक्शन पर जाना है। फिल ऑल द डिटेल स्टेप 1 and 2 एंड सबमिट। आपने एक या दो जो स्टेप थे इसके वो उसको भरने हैं, उसको सबमिट कर देना है। ए कन्फर्मेशन ईमेल विल बी रिसीव्ड ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर कन्फर्मेशन मेल भी आपकी वापस आएगी। द फाइनल सेलेक्टेड टीचर विल बी इन्फॉर्म थ्रू मेल। जो फाइनल सिलेक्शन होगा टीचर्स का वो भी थ्रू ईमेल के माध्यम से ही आपको सूचित किया जाएगा। क्या है क्राइटेरिया, क्या है इसकी योग्यता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। साइंस टीचर अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम सेकेंडरी एजुकेशन। द टीचर मस्ट हैव expertise, unique, innovative teaching method that is developed innovative science experiment, oblique activity or government award received for teaching or guided student to the science based idea innovations project or developed science teaching kits or worked for science popularization or developed any lab other facility to popularize the साइंस एक्सेट्रा। तो ये तो था एक लेटर जो कि आदरणीय श्री महेश पटेल जी के द्वारा डायरेक्टर SCRT महावीर प्रसाद जी को लिखा गया था। इसके बाद उसी तर्ज पर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हरियाणा गुड़गांव यानी SCRT गुड़गांव के द्वारा राज्य के सभी जिला अधिकारियों के नाम ये पत्र 22 नवंबर 23 को जारी किया गया है। विषय भी वही है इसका, 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2023 ड्यूरिंग 17-20 जनवरी 2024। सेम बातें उसी लेटर की हैं जो कि हम पहले उसमें कर चुके हैं। लास्ट डेट 3 जो है दिसंबर है। द लेटर फ्रॉम NIF इज अटैच्ड फॉर योर रेफरेंस। द इंटरेस्टेड टीचर फ्रॉम द स्टेट शुड बी एनकरेज टू अप्लाई। यानी जो इंटरेस्टेड टीचर हैं जिनके पास नए नए आइडियाज़ हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, या उनके पास कोई तजुर्बा है किसी प्रकार के मॉडल को या लाइव मॉडल बनाने का उनका कोई एक्सपीरियंस, तो वो यहाँ पे ज़रूर पार्टिसिपेट करें ताकि आप राज्य या नेशनल लेवल पर आप अपने स्टेट को, अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने ब्लॉक को और स्वयं अपने आप को स्कूल के माध्यम से इसमें आपकी भागीदारी हो सके। तो इसके साथ साथ एक जो ये वेबसाइट बताई गई थी scienceindiafest.org, हम इस पे भी करके देख लेते हैं एक बार। इसका एक मैसेज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ जो कि ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर इस मेल के माध्यम से, तो वही है सेम बातें कि जो हम बातें आप इसके बीच में हमारी हो चुकी हैं काफ़ी। लेकिन अगर हम जो इन्होंने वेबसाइट का नाम दिया था वेब पोर्टल का, और रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है जो जनरल रजिस्ट्रेशन के लिए वो जो स्टेप दिए थे और ये क्राइटेरिया भी इन्होंने दिया वही सेम मैसेज के रूप में। तो अब हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर पे। तो मैंने इस रजिस्ट्रेशन जो प्रोसीजर है इसका जो पोर्टल है उसको मैंने ओपन किया है। अब यहाँ पे ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 21-24 जनवरी 2023, और ऊपर तो ये 2022 दिया हुआ है। लॉग इन टू IISF 2023। तो यहाँ पे आपको अपनी मेल डालनी है। फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ, ये मैंने मेल डाल दी अपनी। पासवर्ड इन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि योर पासवर्ड विल बी डेट मंथ एंड ईयर। फॉर एग्जांपल इफ योर डेट ऑफ बर्थ इज 26/6/1990 देन योर पासवर्ड विल बी 20/06/1990। अब फॉर एग्जांपल मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं यहाँ पे डालता हूँ,
ये मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी और अब मैं चलता हूँ लॉगिन की तरफ। तो लॉगिन में ये अगर आप डायरेक्ट इसमें पासवर्ड इस टाइप से डालते हैं तो मैंने कई बार ट्राई किया है तो ये नहीं हो पा रहा था। तो इसमें मैसेज आ गया कि प्लीज़ चेक योर ईमेल और पासवर्ड एंड ट्राई अगेन। तो इसका मतलब ये है कि भी अभी हमें डायरेक्ट लॉगिन नहीं करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखा है रजिस्टर्ड हेयर, तो यहाँ पे मैंने किया, क्लिक किया इसको। तो अब हम चलते हैं इस पे रजिस्टर्ड हेयर पे। तो अब ये रजिस्टर्ड हेयर का जो पेज है यहाँ पे वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो देखिए अब ये पेज आपका इस तरह से ओपन हो गया। इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2023। दिस रजिस्ट्रेशन इज फॉर जनरल पार्टिसिपेशन। फॉर पार्टिसिपेंट इन इवेंट प्लीज डू इवेंट स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन। इवेंट स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन। तो अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ये मैंने नेक्स्ट टैप कर दिया इसका। नेक्स्ट स्टेप अब इसका चल नहीं रहा। तो नेक्स्ट स्टेप भी जैसे किया मैंने तो यहाँ पे आ जाता है ये, जैसे पार्टिसिपेंट फुल नेम आ जाएगा आपने यहाँ पे। अगर हम ये कर देते हैं मास्टर मिस्टर मिसेज डॉक्टर ये सब प्रोफेसर, तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, एंटर फुल नेम। फिर आ जाता है यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल अदर, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी आपकी यहाँ पे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पे भरनी है। अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का ऑप्शन है ये, तो आप इनमें से एक को सिलेक्ट करेंगे। आपके स्कूल का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम, जो भी आपका ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट, यहाँ पे आप एड्रेस दे सकते हैं। इसके बाद आप देंगे यहाँ पे आपकी ईमेल, प्राइमरी ईमेल एड्रेस आपने देना है जिस पे आपको रजिस्ट्रेशन का रिसीविंग भी आ जाएगी आपके पास। तो इसके साथ फिर आ जाता है प्राइमरी मोबाइल नंबर, प्रेफरली टेलीग्राम या व्हाट्सएप, मतलब व्हाट्सएप नंबर दे दें ताकि व्हाट्सएप पे आपको कोई मैसेज भी अगर वो देना चाहते हैं तो इजीली आपको मिल जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन टाइप है यहाँ पे सिलेक्ट रजिस्ट्रेशन टाइप इवेंट पार्टिसिपेशन। आपने अगर इवेंट में पार्टिसिपेशन करना है देन आप इवेंट पार्टिसिपेशन को ऐसे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से अगर मैं इसमें थोड़ा सा अपना करके दिखाता हूँ आपको, तो मान ली फॉर एग्जांपल मेरा नाम है, मैं अपना नाम भर देता हूँ इसमें। ये मैंने नाम भर दिया अपना। तो हम इसको पहले सबसे पूरा फुल पेज कर लेता हूँ मैं। इसके बाद मैंने जेंडर मेरा मेल आ जाता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा क्योंकि ये इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। अगर आप जब तक, अब मेरा तो 68 है तो मेरे को काफ़ी पीछे यानी कि जाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप बैक जाके इस पे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि आपकी एज साइंस टीचर आपकी एज मेरे से एज में कम होंगे आप, तो आपके लिए तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लेकिन मैं अपना एक बार स्टेप करके दिखा रहा हूँ आपको पूरा। तो इस तरह से अगर मैं चलता रहूँगा तो मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 68 है। तो यहाँ पे मैं 68 को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, आ जाएगी जल्दी से। तो ये मैं बैक पे कर रहा हूँ। 85 आ गया है तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। क्योंकि इस सिस्टम में आपको फिर उसी डेट ऑफ बर्थ पे जाना पड़ता है सिलेक्ट करने के लिए, वरना तो एक आसान सा स्टेप इसमें ये हो सकता था कि इस तरह से इसमें डेट ऑफ बर्थ न डाल के हम डायरेक्ट लिखने का प्रयास करें। ऐसा ऑप्शन थोड़ा सा इजी रह जाता है। इसमें तो बहुत लंबा समय डेट को सिलेक्ट करने में ही लग जाता है। तो चलो 73 आ गया है, 72 भी निकल गया है, 71 चल पड़ा है। मेरा तो 68 आएगा अभी, तो ये आने वाला है। 69 आ गया तो ये आ जाएगा 68। ये चल पड़ा 68। और क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 10 जनवरी है तो यहाँ पे जनवरी 68 मैंने सेट कर दिया। अब ये आ गई आपकी डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद मेरी जब मान ली फॉर एग्जांपल मेरी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो मैंने भर दी यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट। अब इंस्टीट्यूशन का नाम भरना है यहाँ पे कोई भी, तो मेरा जैसे BEO
ऑफिस है राजौंद का, तो मैंने ये आपके सामने भर दिया। तो ये हो गया। ईमेल मैंने प्राइमरी जो हमारे ऊपर भी मैंने भरी थी ना अपनी, तो ये मैंने मेल भर दी अपनी, तो ये अवेलेबल भी है वहाँ पे। फिर दोबारा से इसने नंबर पूछा है, तो मैंने यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ मैं, ये मैंने नंबर दे दिया। इवेंट टाइप है, जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन इवेंट में ही मान लो मेरे को भाग लेना है इसमें तो वैसे ही कर दिया मैंने। तो अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो इजीली ये चला जाएगा। अब आ गया है यहाँ पे रीजन, रीजन मांगेगा आपसे, तो मान लो रीजन हमारा इंडिया हो जाता है। स्टेट मांग लेता है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे स्टेट मेंशन कर सकते हो। तो मेरा स्टेट जैसे हरियाणा से हम लोग, तो मैंने हरियाणा भर दिया। सिटी का नाम आएगा यहाँ पे, तो मैंने कैपिटल भर दिया, ये मैंने कैपिटल कर दिया। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा, ये नेक्स्ट स्टेप कर दिया मैंने। अब जो OTP आया मेरे पास, एक ईमेल OTP, तो मुझे साथ में अपना मोबाइल भी रखना पड़ेगा, ताकि जो OTP आया उसके लिए उसको मैं देख सकूं। और तो ये मेरे पास OTP आ चुका है, तो मैं इसमें OTP अपना फिल कर रहा हूँ। ये मैंने OTP भर दिया, और अब करूँगा मैं फिर नेक्स्ट स्टेप पे। तो ये चीज़ें दोबारा दोबारा आती रहेंगी आपके पास। देखो 3 स्टेप मेरे पूरे हो गए थे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, रीजन, वेरीफाई OTP और टर्म्स एंड कंडीशन। अब टर्म्स एंड कंडीशन जैसे मैंने कर दिया ये, क्योंकि मैं अब और इसमें आपको ये अब करना है यहाँ पे, ओके कर दिया आपने, ये कर दिया, और रजिस्टर्ड यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि मेरे को तो रजिस्टर्ड नहीं करना है। और अगर मैं रजिस्टर करता हूँ तो दोबारा फिर लॉगिन मेरे को उस चीज़ पे जाके फिर वो ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। तो मैं इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा, क्योंकि उनके पास मेरी इन्फॉर्मेशन सारी चली जाएगी अगर मैं रजिस्टर्ड हो जाता हूँ। तो क्योंकि मैं तो साइंस का टीचर नहीं, और मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहता। तो एक सिंपल सा बात है कि आपको यहाँ तक लेके आने का था, आपको समझाना था, आपको थोड़ा सा किस तरह से हम इस में अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, इस तरह से आपको चलना है। जैसे आप मान लीजिए रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। मान लीजिए मैं कर भी देता हूँ, मैंने कर दिया, चलो ये कॉन्ग्रेचुलेशन का मेरे पास मैसेज आ गया, द एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल सबमिटेड, योर क्रेडेंशियल आर सेंड टू, मेरी मेल पे ये चीज़ आ चुकी है। अब यहीं से आप चाहें तो अपनी मेल आईडी खोल लीजिए, मेल आईडी पे आपको इसका आ गया है रजिस्ट्रेशन का मेरे पास मैसेज। तो अब तो ये रजिस्टर्ड हो चुका है। तो जो मेरा, अब मैं लॉगिन करता हूँ, तो अब मैं लॉगिन पेज पे चला जाता हूँ। यहाँ पे दोबारा से हम उसी पेज पे आ गए, तो ये पेज आपका प्रीफेस इस तरह से खुल जाएगा। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है एक टीचर के लिए, और मैं तो ये आपको सजेशन करता हूँ सभी साइंस टीचर से कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी अपनी निभाएं, और बहुत मौका मिलता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, और अपने आप को आगे तक ले जाने के लिए। तो मैं चलो इसमें अपना लॉगिन करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया अपनी मेल आईडी, और फिर अब आ जाएगा यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिया हुआ, तो यहाँ पे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, या मैंने इसको डाल दी, और अब मैंने कर दिया लॉगिन। तो अब लॉगिन बड़ी इजीली हो जाएगा। देखिए ये आ गया मेरा लॉगिन पेज, खुल गया मेरा। आप यहाँ पे प्रोफाइल भी चेक कर सकते हो। अब लॉग आउट करने का भी है यहाँ पे ऑप्शन, तो इवेंट पे भी जा सकते हो। कॉमन इवेंट है, यू कैन पार्टिसिपेट इन वन ऑफ द दीज इवेंट। अब देखिए इनमें से एक को आपने सिलेक्ट करना है, यू कैन पार्टिसिपेट इन वन ऑफ द दीज इवेंट, ठीक है, वन ऑफ दीज, यानी कि किसी एक में अगर आप करना चाहते हैं। तो ये बहुत सारे यहाँ पे आप देख रहे हो पेज है ये। मैं बताता हूँ आपको कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये पेज इतने दिए हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ अप्लाई की, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट स्टूडेंट साइंस विलेज है, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते आप। अप्लाई कहाँ कर सकते हो? फेस टू फेस विद न्यू फ्रंटियर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। लास्ट डेट इसकी 30 नवंबर है। यहां तक ये 30 नवंबर है जहां पे अप्लाई लिखा हुआ है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो अपने आप को।
स्टूडेंट इनोवेशन फेस्टिवल, स्पेस हैकाथॉन है, साइंस थ्रू गेम्स एंड टॉयज है, इसमें कर सकते हो। 3 तो ये हो जाते हैं। चौथा है वैज्ञानिका साइंस लिटरेचर फेस्टिवल, इसमें कर सकते हो। इनमें आप नहीं कर सकते। एक आपके पास है एजुकेशन फॉर एस्पायरिंग इंडिया नेशनल साइंस टीचर वर्कशॉप, इसमें करना आपने, ठीक है। अप्लाई करोगे यहाँ पे तो मैं बाद में खोल के दिखाता हूँ। एक आप यहाँ पे यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस, इसमें अप्लाई का है इसमें। लेकिन हमारे लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो है, क्योंकि इसका जो टाइटल है उसमें पहले बताया भी गया कि आपने कहाँ जाके अप्लाई करना, हमने सभी को छोड़ देना, केवल मात्र हमने अप्लाई एजुकेशन फॉर एस्पायरिंग इंडिया नेशनल साइंस टीचर वर्कशॉप पे करना। अब ये पेज सामने आपके है, तो मैं अब इसको अप्लाई के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये मैंने अप्लाई पे क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ पे आ जाता है एजुकेशन फॉर एस्पायरिंग इंडिया नेशनल साइंस टीचर वर्कशॉप। अभी तक तो रजिस्ट्रेशन किया मैंने, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको अब स्टेप 1 और स्टेप 2, चलो बात कर लेते हैं थोड़ी सी। स्टेप 1 में क्या करना आपने, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद स्पेशलाइजेशन लिखनी है आपने यहाँ पे अपनी। तो स्पेशलाइजेशन के बाद आपको आइडेंटिटी टाइप, ये आपको यहाँ पे देना, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड या कुछ और भी देख सकते हो। डॉक्यूमेंट का इसका नंबर देंगे। अगर आपने मान लिया आधार कार्ड दिया तो उसका नंबर आ जाएगा। डॉक्यूमेंट की इसकी यहाँ पे आपको फाइल भी अपलोड करनी है, और उसका जो साइज है वो 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और किस में कर सकते हो, PDF में, डॉक्यूमेंट में, डॉकैक्स में, JPG और JPG और PNG में कर सकते हो। अब आपने एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ पे भरनी है। एज आपका क्या है रोल, मान लीजिए आप टीचर हैं, साइंस कम्युनिकेटर है, ट्रेनर है, अदर है, ये इसमें से एक। स्कूल कॉलेज का नाम आ जाएगा, आपका स्कूल का नाम आ जाएगा, डेजिग्नेशन आएगा, सिलेक्ट जॉब आ जाएगा, जॉब में गवर्नमेंट प्राइवेट है ये आएगा ऑप्शन। वर्क एक्सपीरियंस यानी कि ईयर और मंथ में देना कि कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है। अब डिटेल अबाउट एक्सपर्टाइज यूनिक इनोवेटिव टीचिंग मेथड, नंबर डिटेल यानी कि आपको यहाँ पे वो अपलोड करना है 5 MB में। इनोवेटिव साइंस एक्सपेरिमेंट कुछ भी आपने किया हुआ है तो उसी को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। डेवलप एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी रिकॉग्नाइज बाय एनी गवर्नमेंट एजेंसी, नंबर उसका भरना है। देखिए ये बहुत ज़रूरी है स्टेप। मान लीजिए ये जो फर्स्ट स्टेप है इसका, जहाँ पे स्टार दिए हुए हैं लाल रंग में, ये आपको कंपलसरी भरने हैं। अब वो आपने देखना कि क्या भर सकते हो, क्योंकि देखो मैं आगे पेज पे नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो जब आप ये फर्स्ट पेज कर दोगे तो फिर आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप 2। तो स्टेप 2 में भी जो जो बातें आएंगी आप उसके हिसाब से उन चीज़ों को भर दीजिएगा, और उसके बाद आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। इसके बाद आपके पास मेल आ जाएगी कि हाँ भाई आपने पूरी तरह से इस प्रोसेस को पूरा कर लिया है। प्रॉब्लम क्या रहती है हमारे बीच में कि हमारे पास लेटर तो आ जाते हैं, लिंक भी आ जाता है, लेकिन किस तरह से उसमें हम अप्लाई करें, जाके किस तरह से बच्चों को अप्लाई करवाना है। बहुत सारे आते हैं कि इनमें बच्चों को अप्लाई करवाओ आप, या खुद स्वयं अप्लाई करो, और वो चीज़ें हमारे तक शायद नहीं होती हमसे। तो फिर हम इसी उसमें रह जाते हैं कसम में कि भाई करें अप्लाई या ना करें। देखिए लास्ट डेट 3 दिसंबर दी गई है, तो आप जल्दी से जल्दी अपने पहले डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन तैयार कीजिए, और उसके हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो ये यहाँ तक का एक प्रोसेस मैंने बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बातें, और ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म एक साइंस टीचर के लिए दिया है इन्होंने। इसमें तो अटेंड करना ही, वर्कशॉप में भाग लेना ही, और वहाँ पे जाके पूरे साथियों से मिलना, वहाँ की बहुत सारी चीज़ों को सीख के आना, कुछ अपना प्रेजेंटेशन दे के आना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एक साइंस टीचर होने के नाते आपको। और वो बेस्ट प्रैक्टिस आप आके अपने बच्चों के साथ भी साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो एजुकेशन विभाग के हमारे साइंस टीचर हैं वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को तो वो भी डिपेंड ऑन यू। वीडियो अच्छी लगती है, नहीं लगती है, लाइक कमेंट भी ज़रूर कर सकते हो आप, ताकि पता चले कि हाँ भाई किस तरह की आपको ये वीडियो लगी।
तो वीडियो देखने के लिए, साझा करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।